Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Net Exponent. My name is Yashika. So today in this video we will be covering a very important topic, and that is capital budgeting, right? So first of all let's discuss what is capital budgeting. Capital budgeting का मतलब होता है जब आप लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट? व्हेन a firm is investing in its long term assets, like if a firm wants to purchase maybe a land, a machine, a building, all these are long term assets, right? So a firm has to make a very important decision, right? So firm has to decide कि वो कौन से asset में invest करे. A firm has lots of choices. So the firm has to decide in which proposal he should invest, right? कौन से proposal में वो पैसे लगाए. So when a firm takes this decision, it is called as capital budgeting decision, which is a very important decision and is irreversible. Why? क्योंकि ये एक ऐसा डिसीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व है, राइट? ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज बिल्डिंग खरीदी और कल बेच दी, राइट? It has huge investment involved. So it's very important that the firms take this decision very carefully. So there are various techniques on how can firm decide in which proposal should ही इन्वेस्ट, राइट? कौन से प्रपोजल में इन्वेस्ट करे, उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है. सो वी विल बी लुकिंग एट द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो फर्स्ट टेक्निक इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. अब नाम से समझ में आ रहा है, पे बैक का मतलब क्या होता है? कितने टाइम के बाद मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा. इन हाउ मेनी ईयर्स will I be able to recover my money back, right? For example, if I invested 100 rupees today, so my main motive is कि यार ये 100 rupees मैं recover कर पाऊँ, एटलीस्ट मुझे कोई लॉस ना हो. So in how much time period will I be able to recover my 100 rupees back? आप कहीं पर पैसा लगाते हो तो आपको ये होता है ना कि यार ये जितना मैंने लगाया एटलीस्ट उतने तो मुझे वापस मिले, राइट? So this is called as payback period, right? There are two concepts, inflows and outflows. Inflows means when the money is coming in, and outflow is when the money is going out, when you are making payment of something, right? So when your outflows and inflows are equal, ये कितने टाइम में होगा ऐसा, this is called as payback period. So now let's look at the example of payback period to make the concept more clear to you. See, cash outflow is 20,000, which means you have invested 20,000. Outflow का मतलब पैसा गया, which means you have invested, right? आपने वो खर्च करे हैं पैसे. So अगर आपने spend करा 20,000, that is called as cash outflow, right? So the cash outflow is 20,000 and inflow का मतलब पैसा जो आ रहा है. So inflows are in the first, this is expected inflow, जो मुझे इससे मैं expect कर रही हूँ कि मुझे पैसा जो मेरे पास आएगा. So this is for first year. In the first year you are expecting to get 8,000 rupees. In the second year you are expecting to get 6,000. थर्ड ईयर में 4,000, फोर्थ ईयर में 2,000 एंड फिफ्थ ईयर में 2,000. दीज आर योर एक्सपेक्टेड इनफ्लोज, राइट? नाउ यू हैव टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड मैंने कहा था कि कितने टाइम के बाद आपके ये 20,000 रुपये रिकवर हो जाएंगे. तो पहले साल में आपको 8,000 मिले, दूसरे में 6, टोटल कितना हो गया? 14,000. थर्ड ईयर में आपको फिर से 4,000 मिले, कितना हो गया? 18,000. नेक्स्ट में आपको 2 मिले, तो आपके कितने बन गए? यहाँ तक आपके बन गए 20,000. सो इन 4 years you will be able to recover your 20,000. So payback period is 4 years in this case. I hope it is clear to you, right? ये तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था. अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल. So the second example is if the cash outflow is 18,500. ये आपका cash outflow है
एंड इनफ्लो इज सेम, यही 86422, इनफ्लो इज सेम एंड आउटफ्लो इज 18,500. अब क्या करें हम, 8,000 फर्स्ट ईयर में मिल गए, सेकेंड ईयर में 6, तो टोटल बिकम्स 14, नेक्स्ट ईयर में 4 विच कम्स टू बी 18,000. 3 साल में आपको 18,000 तो मिल गए एंड योर आउटफ्लो इज 18,500. अब कितने बचे आपके पास, 500 और बचे. ठीक है, इसका मतलब ये कि फोर्थ ईयर में आपको सिर्फ 500 रुपये चाहिए और आप रिकवर कर लोगे, राइट. सो योर पे बैक पीरियड कम्स टू बी 3 years. तो पूरे पूरे हैं ही आपके पास, दीज आर 3 complete years, राइट. सो 3 प्लस फोर्थ ईयर में you just need 500 out of 2,000 to recover your outflow. So 3 plus 500 divided by 2,000, which comes out to be 3.25 years, right. I hope payback period is clear to you. So if I talk about advantage and disadvantage of payback period, the advantage of payback period is it is very simple to calculate, easy to understand, right. ये कोई भी calculate कर सकता है और आसान है समझना. The disadvantage of payback period is it doesn't take into consideration time value of money. अब आप पूछोगे what is time value of money and how is it not taking time value of money. See, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, इफ आई गिव यू 2 ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन इज आई एम गिविंग यू 100 रुपीज टुडे, सेकेंड ऑप्शन इज आई एम गिविंग यू 100 रुपीज आफ्टर 2 years. सो विच ऑप्शन विल यू चूज? ऑब्वियसली यू विल से you will choose the first option, I want 100 rupees today. Why? Because the value of 100 rupees today is worth more than which you will get after 2 years, because there are many conditions involved. maybe inflation हो जाएगा तब तक. 100 रुपये में जितनी मैं आज 100 रुपीज़ का जो मैं सामान खरीद सकती हूँ, क्या वो मैं 2 years बाद खरीद पाऊँगी? आंसर इज नो, राइट. सो 100 रुपीज़ worth today is more than 100 rupees worth 2 years after. This is called as time value of money. So I said payback period doesn't take into consideration time value of money. How? See, here I am getting 8,000 rupees, right, after 1 year. Then I am getting 6,000 after 2 years. तो इन्होंने ऐसे ले लिया ये अमाउंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को लिया ही नहीं इन्होंने 6,000 तो मुझको 2 साल बाद मिलेंगे, उसकी आज की वैल्यू क्या है वो नहीं पता मुझे. वॉट इज इट वर्थ टुडे? दिस 6,000 आई विल बी गेटिंग आफ्टर 2 years, बट द वैल्यू ऑफ 6,000 टुडे इज डिफरेंट, राइट. तो ये हमने लिया ही नहीं. So the major disadvantage of payback period is that it doesn't take into consideration time value of money, right. And the second disadvantage is जहाँ तक जिस टाइम पीरियड तक कैश आउटफ्लो रिकवर हो गया उसके बाद वाला टाइम पीरियड इग्नोर करता है ये. सो हियर इन दिस एग्जाम्पल 20,000 rupees is recovered after 4 years, so it ignored the 5th year, right. So this is all about payback period. Now let's look at another technique which takes into consideration time value of money. I have deliberately chosen these 2 techniques because so that you can get an understanding on how one technique is ignoring time value and how other technique is taking time value of money. So the technique which takes time value of money is net present value, which is also called as NPV, right. Now this technique takes into consideration time value of money. Now what do you mean by this? See, अब इसके अंदर क्या हुआ, सपोज योर कैश आउटफ्लो इज 1 lakh. सी, आर यू एबल टू सी दिस ब्रैकेट? व्हाट डू यू मीन बाय दिस ब्रैकेट? दिस ब्रैकेट मीन्स दिस वैल्यू इज इन नेगेटिव. नेगेटिव में कब होगी वैल्यू? जब आप पेमेंट करोगे, राइट. जब आपको पैसे मिलेंगे तो वो पॉजिटिव होगा. व्हेन यू विल मेक सम पेमेंट द वैल्यू विल बी इन नेगेटिव. So this value is in negative, which means that you have made the payment, right. So this is your cash outflow. ये समझ में आया? जब भी value negative में हो, that means this is your cash outflow, and rest of the values are in positive, which means it is our cash
इनफ्लो, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द ईयर्स. अब ये ईयर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. 1 लाख से पहले ईयर है 0. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये कि जो ये 1 लाख की पेमेंट करी आपने, मतलब जो आपका कैश आउटफ्लो है, यू हैव मेड दिस पेमेंट इमीडिएटली, यू हैव मेड दिस पेमेंट टुडे. ये तो आज की ही वैल्यू है बिकॉज यू हैव मेड इट टुडे, राइट. एंड द कैश इनफ्लोज 20, 60, 40, 30 एंड 20, यू हैव मेड इट एट डिफरेंट टाइम पीरियड. 20,000 आपको जो मिलेंगे पैसे, सॉरी दीज आर योर कैश इनफ्लोज, सो वट एवर अमाउंट यू आर गेटिंग दैट इज एट डिफरेंट टाइम पीरियड. ये आपको 1 ईयर बाद मिल रहा है फर्स्ट वाला, ये आपको 2 साल बाद मिल रहा है. दिस यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ 3rd ईयर एंड दिस इज 4th एंड दिस इज 5th. These values you are getting at different time period. So now it becomes important to convert all this into present value, because this is not your present value. As I told, time value of money, the value of 20,000 which you'll be getting after 1 year is not same today, right? So it is very important to convert this into present value. Now how do you convert this? So there is a table for converting it, which is called as PVF table, right? PVF table, which you will be able to find at the back of your books, right? So you can see that table and you will be getting the values. अब हम table पढ़ते कैसे हैं वो देखते हैं. जब भी आप NPV का question पढ़ोगे, there will be a rate of return which will be mentioned in the question. जैसे इस क्वेश्चन में 7% रेट दिया हुआ है. नाउ व्हाट इज दिस रेट ऑफ रिटर्न? दिस रेट, इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय के, राइट? सो दिस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो दिस रेट मीन्स दिस इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट. कंपनी बोल रहा है मुझे इतना तो कम से कम रिटर्न चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट से. सो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग 7%. तो अब आप क्या करोगे, पीछे बुक में जाओगे, पीवीएफ टेबल खोलोगे एंड यू विल बी लुकिंग जहाँ पर रेट 7% दिया है वो चेक करोगे, और ईयर कितने पे चेक करोगे, 1 ईयर पे. दैट मीन्स यू विल बी लुकिंग एट 7,1. इस पे चेक करोगे आप टेबल पर. सो यू विल बी गेटिंग वैल्यूज. 7,1 पे चेक करो तो वैल्यू आई आपकी 0.935. ऐसे ही व्हेन यू चेक फॉर सेकेंड ईयर यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू. फिर 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर यू विल बी गेटिंग वैल्यूज लुकिंग एट द टेबल. व्हाट आर दीज वैल्यूज? दीज आर वैल्यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यूज इनटू प्रेजेंट वैल्यू, राइट? तो ये आपकी वैल्यूज आ गई. नाउ यू विल बी मल्टीप्लाइंग द जो भी टेबल वाली वैल्यू है इनटू जो आपका कैश इनफ्लोज है. यू विल बी मल्टीप्लाइंग. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज. ये आपकी आ गई प्रेजेंट वैल्यू इन रुपीज. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसको करोगे टोटल. सो जब आपने ये टोटल करा देन यू विल बी गेटिंग टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज. ये क्या आ गई आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, राइट? अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ये 1 लाख को कन्वर्ट क्यों नहीं करा पीवीएफ में? एज आई ऑलरेडी सेड, ये 1 लाख रुपीज जो वैल्यू है, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. ये है ऑटोमेटिकली प्रेजेंट वैल्यू. व्हाई? बिकॉज हियर इट इज रिटन 0 ईयर्स. 0 का मतलब क्या होता है? दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू. ये अभी पेमेंट कर दी मैंने. सो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट कैश आउटफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू, राइट? अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रेजेंट वैल्यू है इनफ्लो की और आउटफ्लो की, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो एनपीवी बिकम्स द टोटल ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. आपने जब माइनस करा, जो आपका आंसर आया, दैट इज कॉल्ड योर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू. आई होप this video is useful for you. We did 2 techniques today, that is payback period and NPV technique. One technique ignores time value of money, whereas the other technique takes into consideration time value of money. So if you liked my video, click on the like button, and if this video is helpful for you and if you want me to make
a video on other techniques, please do comment on the box below and tell me if you want that I should make a video on other techniques of capital budgeting. Thank you so much.